السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے پہلے مرحلے میں آج یعنی جمعرات 10 فروری کو 11 اضلاع کی کل 58 اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مظفر نگر، ہاپوڑ، متھرا، آگرہ کے کئی پولنگ اسٹیشنوں پر صبح سے ہی لوگوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی باری کے لیے پولنگ بوتھ پر قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ علاقہ گزشتہ سال کسانوں کی تحریک کا گڑھ رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں مغربی اتر پردیش کی زیادہ تر سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے پرامن انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ کسان تحریک کے اس گڑھ میں انتخابی جنگ میں صبح 9 بجے تک 8% ووٹنگ ہو گئی تھی۔ اتر پردیش میں آج پہلے مرحلے کی پولنگ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں آج جمعرات 10 فروری کو 11 اضلاع کی کل 28 اسمبلی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی سوشل میڈیا پر لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے ہیں۔ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا ہے کہ آج جمہوریت کی عظیم قربانی کا پہلا مرحلہ ہے۔ آپ کے انمول ووٹ کی قربانی کے بغیر یہ رسم مکمل نہیں ہوگی۔ آپ کا ایک ووٹ جرائم سے پاک، خوف سے پاک، فسادات سے پاک اتر پردیش کے عزم کو مضبوط کرے گا۔ آج اتر پردیش میں پہلے مرحلے کے انتخابات ہو رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام ووٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ لیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا: اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں آج پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ میں تمام ووٹروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کووڈ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے جمہوریت کے اس مقدس تہوار میں جوش و خروش سے حصہ لیں۔ یاد رکھیں، پہلے ووٹنگ پھر ریفریشمنٹ۔ اروند کیجریوال کی اہلیہ اور بیٹی بھی پنجاب اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کے لیے مہم چلائیں گی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال اور بیٹی ہرشیتا پنجاب جائیں گی۔ عام آدمی پارٹی امیدوار اور ان کا سی ایم چہرہ دونوں بھگوت مان کے لیے مہم چلائیں گے۔ 11 فروری کو بھگوت مان کا جلسہ دھوری میں ہونے والا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 66,084 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی نئے کورونا کیسز میں 6% تک کی کمی آئی ہے۔ ملک گیر ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک ویکسین کی 171 کروڑ 28 لاکھ خوراکیں دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 46,44,382 ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 1241 افراد کورونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ فی الحال ہندوستان میں ایکٹیو کیسز 7,90,789 ہے۔ اسکول اور کالج کیمپوں میں حجاب پر پابندی سے متعلق کیس میں سماعت کر رہی کرناٹک ہائی کورٹ کے واحد جج نے اس معاملے کو چیف جسٹس ریتو راج اوستھی سے رجوع کر دیا ہے تاکہ وہ اس پر وسیع تر بینچ کی تشکیل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ اس دوران ریاستی کابینہ نے ہائی کورٹ کے اس حکم سے قبل اجلاس منعقد کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے پر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل عدالتی حکم کا انتظار کیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں ماحول پرامن رہا، جہاں قبل ازیں حجاب تنازع پر کشیدگی کے واقعات پیش آئے تھے۔ ریاستی حکومت نے گزشتہ روز حکم دیا تھا کہ تمام ہائی اسکولز اور کالجز 3 دنوں کے لیے بند کر دیے جائیں۔ بیشتر تعلیمی اداروں میں آن لائن تدریس شروع کی گئی۔ پوری ریاست میں پرائمری اسکولز نے کسی خلل اندازی کے بغیر کام کیا۔ کرناٹک کے وزیر دیہی ترقیات و پنچایت راج کے ایس ایشورپا نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب لال قلعے پر بھگوا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ حجاب تنازع پر جو ریاست میں بڑا بحران بن گیا ہے، میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی کھمبے پر بھگوا پرچم لہرا دیں گے۔ جنہیں سمجھ ہے انہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگ اس وقت ہم پر ہنسا کرتے تھے جب ہم ایودھیا میں رام مندر بنانے کی باتیں کرتے تھے۔ ایشورپا نے سوال کیا کہ کیا ہم نے ایودھیا میں اب مندر نہیں بنا دیا؟ ہم دنیا میں کسی بھی مقام پر بھگوا پرچم لہرا دیں گے۔ صدر پردیش کانگریس ڈی کے شیو کمار نے الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی طلبہ کو بھگوا شالیں بانٹ رہی ہے۔ اس پر ایشورپا نے سوال کیا کہ اس میں کیا برائی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا عیسائی اسکولوں میں یونیفارم کے بغیر جانا ممکن ہے؟ میں نے تو بھگوا شالیں نہیں بانٹی ہے، اگر بانٹے بھی ہو تو اس میں کیا برائی ہے۔ کرناٹک میں جاری حجاب تنازع کے درمیان کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی وڈرا نے حجاب حامی احتجاجی طالبات کی تائید میں آگے آئیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ کیا پہننا ہے یہ طے کرنا خواتین کا حق ہے۔ دستور ہند نے اس کی ضمانت دی ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ گزشتہ روز کانگریس نے یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت نے کہا کہ ریاست کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر امتناع کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم اندرا سنگھ پرمار نے، جنہوں نے حجاب پر امتناع کی تائید کی تھی اور اسکولوں میں ڈریس کوڈ تجویز کیا تھا، کہا کہ ان کے بیان کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے، جو ریاستی حکومت کے ترجمان بھی ہیں، میڈیا سے کہا کہ مدھیہ پردیش میں حجاب پر کوئی تنازع نہیں ہے۔
हिजाब पर इम्तना के ताल्लुक से कोई तजवीज़ रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में हिजाब की तायीद और मुखालिफत में मुजाहिरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला कर्नाटक का है, जो वहाँ की हाईकोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब तक लड़कियों को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। तालीमी इदारों में आज अगर मुस्कान और दीगर लड़कियों को खतरा है तो असदुद्दीन अवैसी को भी खतरा है। तमाम को मसावी तौर पर हिफाजत मिलनी चाहिए। समाजी इंसाफ हमारे लिए अहम है। सियासत हमारे लिए तिजारत नहीं और दौलत कमाने का जरिया नहीं है। मजलिस का रिकॉर्ड है कि मजलिस हमेशा मजलूम अवाम को हक दिलाने के लिए सियासत में खिदमत करती है। हम कमज़ोरों को हक दिलाते रहेंगे। हमारी जद्दोजहद ये है कि कमज़ोरों को हिस्सा मिले, मसावत और इंसाफ का नारा कामयाब हो। उत्तर प्रदेश की अवाम हमेशा डर कर वोट देती है, इस मरतबा डरने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी को रोकना ज़रूरी है। ओवैसी ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि डर डर कर वोट दें। बीजेपी को रोकना क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? दीगर जमातों को बरसों मौका दिया गया। मजलिस को एक बार मौका दिया जाए तो मजलिस दीगर जमातों और मजलिस के दरमियान का फ़र्क वाज़े कर देगी। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने सवाल किया है कि क्या संघ परिवार और बीजेपी फैसला करेंगे कि हमें मुल्क में क्या खाना है और क्या पहनना है। उन्होंने कहा कि यह शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एनसीपी के कौमी तर्जुमान नवाब मलिक ने ट्विटर पर यह भी सवाल किया कि क्या स्कूल और कॉलेज जाने वाली मुस्लिम लड़कियां कोई मसला है। उन्होंने सवाल किया कि मरकज़ के बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हिजाब तनाज़े पर पाकिस्तान से आ रहे रद्दअमल का जवाब दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा कि यह हमारे घर का मसला है, पाकिस्तान इसमें टांग ना अड़ाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ, इसे वहाँ अमेरिका में पढ़ना था। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। हम पाकिस्तानी अवाम से कहेंगे कि यहाँ ना देखें, सिर्फ वहाँ देखें। आपको बलूचियों का मसला है, आपकी लड़ाइयाँ क्या है, आप इनको देखें। ये मुल्क मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, हमारा घर है। इसमें अपनी टांग या नाक मत डालें, आपकी टांगों और नाक को चोट लगेगी। इससे कबल ख़वातीन के हुकूक़ की मशहूर कारकुन और नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कर्नाटक में हिजाब से मुतालिक तनाज़े पर अपनी राय दी थी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर तबसरा करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान मुस्लिम लड़कियों को महज इस वजह से तालीम हासिल करने से रोक रहा है क्योंकि वो अपना मजहबी लिबास पहनकर जमातों में शिरकत करना चाहती हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम से महरूम करना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। हिजाब पहनने पर इन्हें दहशत ज़दा करना और बुनियादी हक़ से महरूम रखना एक ज़ालिमाना इक़दाम है। दुनिया को यह महसूस करना चाहिए कि हिंदुस्तानी रियासत के इस हिस्से में मुसलमानों को निशाना बनाने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो वहशतनाक है। खलीजी मुल्क कुवैत में सरकारी मुलाजमतों से गैर मुल्की वर्कर्स को हटाकर कुवैती शहरियों को भर्ती करने का मंसूबा रवां साल अगस्त तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में साल 2017 में कुवैतीज़ेशन का मंसूबा सामने आया है, जिसका मकसद सरकारी जायदादों पर मौजूद गैर मुल्की वर्कर्स की जगह मुकामी शहरियों को नौकरियां देना है, ताकि कुवैती नौजवान मुलाजमत हासिल करके मुल्क की भागदौड़ संभालें और मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। रिपोर्ट में बताया गया कि कुवैत में साल 2017 में जारी हुआ मंसूबा लगभग 5 साल में मुकम्मिल होने जा रहा है। रवां साल अगस्त तक सरकारी जायदादों पर तारिकीन की जगह मुकामी शहरी होंगे। तेलंगाना के खिलाफ राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स पर टीआरएस की जानिब से रियासत भर में एहतजाजी धरने और रैलियां मुनज़्ज़म करते हुए सख्त नाराज़गी व बरहमी का इजहार किया जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर वज़ीर-ए-आज़म के पुतले नज़रातिश किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का अलामती आरती जुलूस भी निकाला गया। बाइक रैलियां वगैरह का अहतमाम किया गया। मोदी एनीमी ऑफ तेलंगाना हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ गया। 1 घंटे में 25,000 ट्वीट्स किए गए। वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा पार्टी कायदीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद किया और वज़ीर-ए-आज़म से तेलंगाना के अवाम से माज़रत ख्वाही करने और अपने तौहीन आमेज़ रिमार्क्स से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तेलंगाना की तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी तेलंगाना के अवाम से माज़रत ख्वाही करने और अपने रिमार्क्स से दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा किया। महमूद अली ने चादरघाट, चमन और गन पार्क पर मुनक़िदा एहतजाजी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर राज्यसभा में तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि तेलंगाना का क़याम रातों रात अमल में नहीं आया, बल्कि इसके लिए 58 साल तक जद्दोजहद की गई। सैकड़ों कुर्बानियों के बाद तेलंगाना रियासत कायम हुई है। तेलंगाना
पहले अलहदा रियासत थी। 1956 में इसको आंध्रा में ज़म किया गया। 1969 में आंजहनी एम चिन्ना रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना की तहरीक का आगाज़ किया था। मुसलसिल नाइंसाफियों को देखते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति तश्कील देते हुए तेलंगाना की जद्दोजहद का आगाज़ किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर अनथक जद्दोजहद की, जिस पर उस वक्त की कांग्रेस के ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत ने पार्लियामेंट में बिल मंजूर करते हुए 2014 में अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दी। तेलंगाना की तारीख से वाक़फियत हासिल किए बगैर मोदी ने राज्यसभा में गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए मुजाहिदीन तेलंगाना की तौहीन की है। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का मामला तोल पकड़ चुका है और हर गोशे से कर्नाटक हुकूमत की सरजनिश की जा रही है। इसी दौरान शहर हैदराबाद में भी एक तालीमी इदारे में मुबैना तौर पर एक तलबा को हिजाब ना पहनने की हिदायत दी गई है। इस इक़दाम से मायूस तालिबा, जिसकी शिनाख्त फातिमा की हैसियत से की गई है, उसने ट्विटर के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करते हुए यह दावा किया है कि सिकंदराबाद जुबली बस स्टैंड के करीब वाक़े स्वीकार एकेडमी ऑफ रिपब्लिकेशन साइंसेस के चेयरमैन हनुमंत राव ने तलबा पर यह लुज़ुम आयद किया है कि वो इहाते कॉलेज में हिजाब या बुरखा ना पहने। इतना ही नहीं, कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से यह भी कहा गया है कि वो सिर्फ साड़ी पहनकर ही इदारे में आए। ट्विटर अकाउंट के जरिए फातिमा ने यह बात बताई कि 8 फरवरी को इसकी एक साथी को बुरखा उतारने के लिए भी कहा गया था और इसके बाद तालिबात में बेचैनी पैदा हो गई। फातिमा ने यह भी दावा किया है कि ये इदारे की इंतज़ामिया की जानिब से हिजाब से मुतालिक नया लुज़ुम आयद करने के बाद वो गुज़िश्ता चंद दिनों से कॉलेज भी नहीं गई है। इतना ही नहीं, कॉलेज में दाखिले के वक्त फॉर्म में ये भी लाजिम किया गया है कि वो अपने ड्रेस कोड के बारे में भी तफसीलात बताएं। मुतासरा लड़की ने यह कहा कि इसने पुलिस में शिकायत नहीं की है और समझा जाता है कि ट्विटर के ज़रिए शिकायत करके इसने अपनी शिनाख्त को पोशीदा रखा है और कॉलेज का चेयरमैन इन्हें मजहब के नाम पर निशाना बना रहा है। हालांकि इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस अहदेदारों से राब्ता पैदा करने पर उन्होंने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। इसी तरह इदारे के इंतज़ामिया से भी राब्ता पैदा करने की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। इस वाक़े के बाद सरपरस्तों में तशवीश पाई जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मंशियात की रोकथाम और इसके मामलात से निमटने 2 खुसूसी यूनिट्स का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग हैदराबाद में किया। इस मौके पर डीजीपी को पुलिस सलामी भी दी गई और मंशियात की लानत के सिलसिले में बेदारी फीचर्स भी पेश किए गए, जिसका मुशाहिदा डीजीपी और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने डीजीपी का इस्तकबाल किया। मंशियात से निमटने के लिए बनाया गया पहला शोबा, जिसको हैदराबाद नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग का नाम दिया गया है, मुनज़्ज़म मंशियात की स्मगलिंग के मामला से निमटने का, जबकि दूसरा शोबा नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग जांच करने वाले अहदेदारों की मदद करेगा और सज़ा को यकीनी बनाएगा। कोरोना वायरस तहदीदात के खात्मे के साथ ही महकूमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से टैंकबैंड पर शुरू किए गए संडे फंडे प्रोग्राम के अहिया के सिलसिले में इक़दामात का जायज़ा लिया जाने लगा है और तौक़े है कि आइंदा इतवार से टैंकबैंड पर संडे फंडे की शुरुआत कर दी जाएगी। मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने इस सिलसिले में महकूमा बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए इस प्रोग्राम के अहिया के मुतालिक मुशावरत की है। बताया जा रहा है कि टैंकबैंड पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम संडे फंडे के अहिया के बाद तारीखी चार मीनार के दामन में एक इतवार के वक्फा यानी 15 दिन में एक मरतबा मुनक़िद होने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के अहिया का भी जायज़ा लिया जाएगा। महकूमा बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों ने बताया कि टैंकबैंड और चार मीनार के दामन में शुरू किए गए इन तफरीही प्रोग्रामों में अवाम के बेहतरीन रद्दअमल के बाद महकमे की जानिब से इन प्रोग्राम्स में मज़ीद बेहतरी लाने और तफरीह के लिए पहुँचने वालों को मज़ीद सहूलतों की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बाद महकमा बल्दी नज़्म व नस्क ने सेहत आमा के पेश नज़र इन प्रोग्राम्स को मनसूख करने का फैसला किया था। लेकिन अब जबकि महकमा सेहत की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि अब रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ख़त्म होने लगी है, तो अब संडे फंडे के अलावा एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने का जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।